So till now, we have read in this chapter, Children at Work. It is second chapter to your book, your second book. Chennai Central Railway Station, Belu reached, and he got off from the train, and he was on the platform. At the same moment, one porter came and she cried out of the way. Don't stay in the way. Don't stand in the way. Please leave the way. And Belu jumped aside. Then where he went? उसके बाद वो गया कहाँ? बेलू कहाँ गया? We'll read in the next paragraph. He sat on a bench on the platform, putting his small bundle down. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. People walked by, bumping into him with their suitcase. A voice announced something on a loudspeaker. Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Now see the meaning. Belu then after sat on a bench which was on the platform, and he put his small bundle beneath that bench. He was 11 years old. So in his all 11 years, he had never seen so many people except once in a year at the fair in his village. मतलब क्या है, उसके गांव में साल में एक बार मेला लगता था, तो मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। इतने लोग जितना कि चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे बेलू देख रहा है, अपने 11 साल की लाइफ में कभी नहीं देखा था। केवल साल में एक बार जब मेला लगता था, तभी वो इतनी भीड़ देखता था। लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? पीपल वॉक्ड बाई, bumping into his bumping into him with their suitcase. लोग चल रहे हैं अपने अपने suitcase के साथ। A voice announced something on a loudspeaker. स्टेशन पे आप लोग देखते हैं लाउड स्पीकर होता है, तो वहां भी लाउड स्पीकर है, और लाउड स्पीकर से एक वॉइस अनाउंस हो रही है, एक आवाज बेलू को सुनाई दे रहा है। Near him, a group of people sat on their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. उसके नज़दीक ही लोगों का एक समूह हुजूम बैठा हुआ है, और जो टेलीविज़न हैंग किया गया है, प्लेटफॉर्म पे टेलीविज़न हैंग होता है, लटका रहता है, उस टेलीविज़न को लोग देख रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं, और वो आवाज़ बहुत ही टेरिबल है, डिस्टर्ब करने वाली है, डरावनी आवाज़ है, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि वो वहाँ की लैंग्वेज को समझता नहीं है वेलू। Velu put his head down on his knees, feeling miserable and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days, he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. In his bundle, he carried a shirt, a towel, and a comb. So, see this paragraph. Belu was tired due to this long journey. Uh, then, what he was doing? Belu put his head down on his knees. मतलब अपने नीज के बीच में अपने हेड को झुका करके वो आराम करने लग रहा है बेलू इस समय। और बड़ा ही मिजरेबल मतलब क्या है, कठिनाई महसूस कर रहा, परेशानी महसूस कर रहा, और वो थका हुआ भी फील कर रहा है, थका हुआ भी महसूस कर रहा है। इस समय बेलू थका हुआ भी महसूस कर रहा है। और इसके थके होने की वजह क्या है, क्यों वो थका हुआ महसूस कर रहा है बेलू, इसकी वजह भी इसमें बताई गई है कि थके होने की वजह क्या है। So he had run away from his village 2 days ago. अब ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि बेलू 2 दिन पहले अपने घर से भाग गया था। रैन अवे 2 days ago from his house. 2 दिन पहले बेलू अपने घर से भाग गया, एंड ही हैड ईटेन नथिंग। इन 2 दिनों में इन 2 दिनों में ही हैड ईटेन नथिंग, कुछ भी नहीं खाया, बट सम पीनट्स एंड पीस ऑफ जैगरी, कुछ पीनट्स और कुछ जो है वो जैगरी, गुड़ को बोलते हैं, वो टुकड़े जो लेके आया था अपने घर से, तो गुड़ के कुछ टुकड़े और पीनट्स, बस यही खाया 2 दिन में, बाकी कोई खाना नहीं, बिस्किट नहीं, रोटी नहीं, नथिंग। इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट, अ टॉवेल एंड अ कम। और जो बंडल लिया था, जो गट्ठर लिया था, उसमें भी वो बहुत सारा सामान नहीं लिया था। वो केवल एक टॉवेल लिया था, एक कंघा लिया था, और
एक जो है शर्ट लिया था, इसी को लेके वो अपने घर से चल दिया था बेलू। नेक्स्ट पैराग्राफ से, he had walked for most of the first day to Kannur and then got on train to Chennai. Belu had no money for a ticket, but luckily the ticket collector did not come to the unreserved compartment. He had tried to sleep on the floor near the door. A group of men next to him had played cards and shouted all night. So he had walked for most of the first day. लगभग पूरे दिन जो है आ, वो अपने गांव से पैदल चलते हुए लिफ्ट लेके चलते हुए किसी तरह से कन्नूर पहुंचा था। कन्नूर, आई थिंक इट इज़ अ स्मॉल सिटी इन आंध्रा। और वहां से वो ट्रेन में बैठ गया जो कि चेन्नई जा रही थी, कन्याकुमारी एक्सप्रेस। बेलू के पास पैसे नहीं थे। बेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, जिससे कि वो टिकट खरीद सकता। लेकिन लकीली द टिकट कलेक्टर did not come in that unreserved compartment. लेकिन बेलू का लक अच्छा था, बेलू का सौभाग्य अच्छा था कि टिकट कलेक्टर उस अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में नहीं आया, जिसकी वजह से बेलू बच गया, वो पकड़ में नहीं आया। He had tried to sleep on the floor नियर टू द डोर। पूरी अनरिजर्व कंपार्टमेंट भरी हुई थी, जगह नहीं था बेलू को। वो प्रयास कर रहा था सोने के लिए, जो डोर था डोर के नज़दीक ही वो सोने का प्रयास कर रहा था बेलू। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वहीं पे कुछ लोग बैठ करके कार्ड खेल रहे थे और बहुत ज़ोर से पूरी रात को चिल्लाते रहे, जिसकी वजह से बेलू चाह करके भी सो नहीं पाया। वो चाहता था सोना, लेकिन पूरी रात वो लोग चिल्लाते रहे, जिसकी वजह से बेलू सो नहीं पाया। ये बेलू के साथ प्रॉब्लम थी। देन बेलू क्या किया? नेक्स्ट पैराग्राफ सी व्हाट हैपेंड विद हिम। ए व्हाट न्यू टू टाउन ए कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस। एक आवाज, रफ आवाज बिल्कुल ऐसे पुकार रही थी। ए, क्या तुम इस टाउन में नए हो? इस शहर में नए हो? बेलू opened his eyes. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. Here, hey, बेलू ने अपनी आंखें खोली। वो बंद करके अपने नी के बीच में अपने हेड को लगाए हुए था, थका हुआ था। जब वो आवाज सुना तो उसने अपनी आंखें खोली, तो देखा कोई भी उसे नहीं देख रहा है। बहुत लोग हैं, भीड़ है, लेकिन उसके अगल बगल कोई खड़ा नहीं है और कोई उसे देख नहीं रहा है। फिर वही आवाज आई, हियर हे। ही टर्न्ड अराउंड। बिहाइंड हिम वाज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and she had a huge sack on one shoulder. She was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her shake. Why is she calling me? Thought Belu. And why is a girl wearing a banyan? तो हियर आई, फिर से आवाज आई, इधर देखो। तो बेलू पीछे मुड़ा। ही टर्न्ड अराउंड। जब पीछे मुड़ता है तो क्या देखता है कि एक लड़की है जो उसी के लगभग बराबर एज की है, एक बनियान पहनी हुई है जो उसके घुटने तक आया हुआ है। उसके जो बाल हैं स्टीफ, बिखरे हुए हैं, ब्राउनिश हैं। उसके शोल्डर पे एक बड़ा सा सैक, सैक का मतलब बोरी होता है या बोरा कह सकते हो, बड़ा सा बोरी या बोरा है उसके शोल्डर पे, या वो उसको ली है, एक बोरे को वो अपने शोल्डर पे ली हुई है। और कर क्या रही है? शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर एंड स्टफिंग देम इनटू हर सैक। वो जो गंदे या जो यूज किए हुए प्लास्टिक की ग्लास, प्लास्टिक के कप्स प्लेटफॉर्म पे फेंके गए हैं, उनको वो पिक कर रही है, एक एक को उठा रही है और उन्हें अपने बोरे में रख रही है, उन्हें अपने वापस बोरे में रख रही है। ये काम वो लड़की कर रही है। अब बेलू सोचता है कि व्हाई इज शी कॉलिंग मी? थॉट बेलू। फर्स्ट थिंग which he thought, Belu thought two things. The first thing which he thought, that why this girl is calling me?
ये लड़की मुझे बुला क्यों रही है, मुझे क्यों पुकार रही है? एंड सेकेंड क्वेश्चन दैट वाज मूविंग इन हिज माइंड, दैट इज व्हाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान? अपने गांव में तो कभी किसी लड़की को बनियान पहने नहीं देखा था, फ्रॉक पहनती थी, लेकिन ये लड़की केवल बनियान क्यों पहनी है? तो ये दूसरा क्वेश्चन था जो वो बेलू के माइंड में घूम रहा था। वो लड़की क्या करती है, क्या बोलती है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, व्हाट्स योर नेम? बेलू, मटर्ड बेलू, लुकिंग अवे। मूर्खों की तरह, स्टूपिडली का मतलब कि बेवकूफ की तरह मुझे मत देखो, तुम्हारा नाम क्या है? बेलू ने, मटर्ड का मतलब धीरे धीरे बड़बड़ाते हुए बोला, बेलू। सो मिस्टर बेलू, सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल, रन अवे फ्रॉम होम। तो बेलू को एड्रेस करते हुए लड़की बोल रही है, तो मिस्टर बेलू उसके बंडल को देख करके, तुम घर से भागे हो? बेलू डिड नॉट आंसर. He did not want to tell some strange girl what he had done. He had run away because he could not stand his father beating him for one more day. His father would snatch away all the money Belu and his sister earned and spend it on drink. बेलू ने कोई जवाब नहीं दिया। बेलू उस अजनबी लड़की से नहीं बताना चाहता था कि उसके साथ क्या हुआ या वह घर से क्यों भागा। उसकी वजह थी, इस पैराग्राफ में दिया है, बेलू घर से भागा क्यों था? बेलू घर से इसलिए भागा था कि वो अपने पिता के साथ एक दिन भी घर में नहीं रहना चाहता था। वो, बेलू और उसकी छोटी बहन दिन भर काम करते थे और काम करके कुछ पैसे लेके अपने घर आते थे, 10 रुपए 20 रुपए। उनके पिता क्या करते थे? स्नैच, छीन लेना, ग्रैब कर लेना। उनके पिता उनके द्वारा लाए गए उस 10 रुपए 20 रुपए या पैसे को हड़प लेते थे, ले लेते थे, छीन लेते थे और उसको वो खर्च कर देते थे अपने ड्रिंक में, मतलब कि वाइन पीने में, अल्कोहल पीने में। अल्कोहलिक थे वो। तो अल्कोहल पीने में, शराब पीने में वो पैसे खर्च कर देते थे। इस और उसके अगर बेलू कभी मना करता था तो वो बेलू की पिटाई भी खूब करते थे। बेलू की खूब पिटाई भी करते थे, बीटिंग हिम, पिटाई भी करते थे। नेक्स्ट, डोंट थिंक आई डोंट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर? बिकम रिच? वो लड़की कहती है कि ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। यह जगह तुम्हारे जैसे लड़कों से भरा पड़ा है, बहुत सारे लड़के तुम्हारी तरह, लड़कियां तुम्हारी तरह घर से भाग करके यहाँ आए हुए हैं और उनका एक ही सपना है, क्या? बिकम रिच। सब लोग धनी बनना चाहते हैं। शी sat down next to him. बेलू stiffed away slightly. वो बेलू के नजदीक डेस्क पे बैठ गई। थोड़ा सा बेलू सरक गया। स्टिफ्ड अवे मतलब थोड़ा सा सरक गया बेलू, थोड़ी दूर हो गया उस लड़की से। He felt hunger pinching him and pressed his stomach with a grimace. Hungry? Asked the girl. Hungry? Asked the girl. You won't get food by sitting here glumly making face. I can find some if you want. बेलू 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, बहुत भूखा था, जोर से भूख लगी थी और उसकी वजह से वो अपने पेट को दबा रहा था, ग्रिमेश कर रहा था। लड़की ने पूछा, भूखे हो? हंग्री? आस्क्ड द गर्ल। भूखे हो क्या? यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, तुम दुखी चेहरे को लेके यहाँ बैठे हुए हो, इससे तुम्हें भोजन नहीं मिल जाएगा। आई कैन फाइंड सम इफ यू वांट, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करूं। शी पिक्ड अप हर शेक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे। वो अपना बैग या बोरा उठा ली और वो चलना शुरू कर दी। बेलू स्टेड ऑन द बेंच, अब भी बेलू उसी बेंच पे बैठा हुआ था। व्हाट शुड ही डू? उसे क्या करना चाहिए? शुड ही फॉलो दिस गर्ल? क्या उसे उस लड़की के पीछे पीछे चल देना चाहिए? वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम? वो उसे लेके कहाँ जाएगी? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली। वो अभी थोड़ी ही देर में, वो लड़की, इतनी ज्यादा भीड़ है, उस भीड़ में डिसअपियर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। सो जो भी डिसीजन लेना है बेलू को, जस्ट अभी अभी डिसीजन लेना है। All right, he decided. Anyway, I have no idea where to go. He jumped up and ran
after her. She wasn't even looking back to see where he was. ठीक है, जो भी हो, अभी तो उसे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, क्या करना है। आ, इसलिए immediately Belu decided to go with that girl for a quick relief. But the girl did not see back. The girl did not see back where he was. She did not care. But Belu ran after the girl. Belu started walking to that girl. He started walking back to that girl. So we'll see in this paragraph the family condition of Belu and what Belu did at that particular moment at Chennai Central Railway Station. So I think that you understand the first part of this story clearly.